Morning, my student. Today I am going to teaching you a poem. The name of the poem is A Thing of Beauty. As you know that a thing of beauty means it is related to the natural things. Things that are prevalent in the nature is described by the poet. So see here about in this poem the what is the beautiful things found in the nature that it has a spread. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but still will keep a bower quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, and every marrow are we reaching a flowery band to bind us to the earth, in spite of despondence of the inhuman dearth. See here about this poem. First of all, I want to explain you the word meaning of this poem. See here, nothingness. Nothingness means an absence of something. Nothingness means absence of something. किसी भी चीज का ना होना. Board, a pleasant and shady place under tree or climbing plants. A board white for us, it means something shadow part of the tree, under the tree, pleasant and shady place. Morrow, the coming day. Morrow means coming day. Everything weaving together. Everything means weaving together. एक साथ किसी को गूंथ कर रख देना. अब morrow means होता है coming to day, आने वाले दिनों में. Despondence a state of being disheartened, hopeless. In spite of hopeless, निराशावादी, दुखी होकर. Despondence means दुखी होकर. Dearth means a scarcity of lack of something. Dearth means a scarcity, inhuman dearth. मानव में जो कमी है उसके लिए. Sprouting means producing. Sprouting, develop suddenly in large number. Shady bone, a shade which is helpful to someone. Shady bone, helpful to someone. Rills, a stream of running water. A stream of running water. Grandeur, an impressive bravery. Dooms, the last day of existence. Heaven ring, the door of the God's home. See here, a thing of beauty is a joy forever. किसी भी चीज की सुंदरता सदा के लिए खुशी लाती है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज. और जो चीज़ सुंदर होता है उसकी सुंदरताएं बढ़ती ही जाती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. अगर कोई चीज़ न भी रहे तो पर भी सुंदरता जो है वो हमेशा गुजरती ही जाती है. बट लेकिन स्टिल विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस. लेकिन या स्टिल विल कीप, यह रहेगा ए बोअर क्वाइट फॉर अस. या हम लोगों के नहीं रहने पर भी हम लोगों के पाछे में भी, मेरी छाया के पीछे भी रहेगा. एंड स्लीप, हमारे मरने के बाद भी रहेगा. सुंदरता है किसी चीज़ है. फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग. जब हम लोग सांस लेते रहते हैं
अच्छे स्वस्थ होते हैं, अच्छे स्वप्न देखते हैं, तो उसमें भी सुंदरता की झलक पाई जाती है। Therefore, on every morrow, are we rethink in therefore on every morrow are we rethink a flowery band to bind us to the earth. According to the poet explained even the human lives, nature of the human life with the beautiness. So what is the life of man? Full of beautiness. It is always he enjoy, and in the enjoyed portion he explained in the everyday morning he always dreamt into many type of actions such as he is related to one another. So therefore see here on every morrow, प्रत्येक दिनों में हम लोग अपने नए नए सुंदर सुंदर विचारों को एक दूसरे से जाल की तरह बुनते हैं। जैसे एक फ्लावर को हम लोग एक गुत्था में गुथते हैं और गुथने के लिए हम लोग बाध्य होते हैं। पृथ्वी पर जो भी कार्य है सब कार्य को हम लोग फ्लावर की तरह ही गुथते हैं। इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ ह्यूमन दर्द, अगर मनुष्य के अंदर में क्रूएल्टी भी है, सैडनेस भी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग उस सुंदरता को पाने की इच्छा रखते हैं। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमिंग डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड अवर डार्कनेस वे मेड फॉर आवर सर्चिंग एस इन स्पाइट ऑफ ऑल same shape of beauty moves away the path. कहता है कि अगर दिन यदि छायादार ही रहे, ब्राइटनेस नहीं हो, ग्लूमी हो, धुंधला हो, और उस नोबल यदि आदमी यदि उदार दिल का है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि वह अनहेल्दी भी है, वह अंधकार उसके सामने अंधेरा रास्ता भी दिखाई दे रहा है, तो उसकी आंखें जो है हमेशा सर्च कराती है ऑल शेप ऑन साइट ऑफ ब्यूटी। जिधर भी ब्यूटी जाती है मनुष्य उसकी ओर घूम जाता है। इवन डार्क क्लाउड में भी, पाल मीन्स होता है डार्क क्लाउड। फॉर आवर डार्क स्पिरिट, हमारी जो आत्मा भी है वह भी काली ही है, इसलिए हम उस काली यानी निराशाजनक स्पिरिट के बावजूद भी हम लोग सुंदरता को खोजते ही हैं। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in and clear rills. कहता है कि जिस तरह से सन, मून और ट्री, बूढ़े, युवा जिस तरह से सडनली स्प्राउटिंग करते हैं, जन्मने वाले बच्चे, सैडी बून्स यानी सेड विच हेल्पफुल टू समवन, वैसा बड़े बुजुर्ग जो किसी को मदद करते हैं। फॉर सिंपल शीप, भेड़, और सच है डैफोडिल्स फ्लावर विथ ग्रीन वर्ल्ड, इस रंगीन दुनिया में दे लिव, जैसे लोग रहते हैं यही सुंदरता के मेन फीचर है। एंड क्लियर रील्स, और जैसे बहती हुई नदियाँ, झरझर कलकल करती हुई बहती हुई नदियाँ, इट इज अ साइन ऑफ ब्यूटी। These are the things which the poet describe about the beauty. That are the things that for themselves a cooling cupboard make gents the hot season. जिस प्रकार से एक ठंडी जो वातावरण है उसको वह गर्माहट चिलचिलाती धूप जैसा विशाल राक्षस, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक
जैसा कि मिड फॉरेस्ट बीच घनघोर जंगल में भी वह उजाला करता है, रिच एंड स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्ट रोज ब्लूमिंग, और उसमें उस फुहेरा को जब वर्षा होती है या उसकी रोशनी सूरज की जब पड़ती है तो उसके अंदर में जो छुपा हुआ रोज का फूल है वही खिल पड़ता है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, और उस तरह से मैसिव इम्प्रेसिव पाकर लास्ट डे ऑफ द एग्जिस्टेंस, अगर दिन कम भी रहता है और यही सूरज की रोशनी आती है वो फ्लावर खिल जाते हैं। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेट, अब हम लोग कल्पना करते हैं वह शक्तिशाली मृत्यु का, द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, जो हमारी अंतिम अवस्था जब मृत्यु की हो जाती है उस समय भी मनुष्य अपनी वही कल्पना, सुंदरता की कल्पना मरते मरते समय तक भी करता है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन डोर, यहाँ तक कि अगर स्वर्ग की दरवाजे पर भी जाने की तैयारी करता है तो पर भी सुंदर चीज़ों के ऊपर इसकी निगाह हमेशा पड़ती रहती है। सो इन दिस पोएम द पोएट जॉन केट्स इज ए रोमांटिक पोएट and he always described the natural things, the things that are found in the nature. In this poem I found the beauty of the trees, beauty of the flowers, beauty of the such sprouting things. The poet saw himself as a dark spirit and he always want the shady dooms penetrate the sun rays, penetrate their rays in the dark forest, and among the dark forest the rose daffodils and rose flower bloom. So this is the main aspect of this poem. See there. About the poet John Keats, born 31 October 1795 to 23 February 1821, was an English poet. He was an English poet. He is often ranked as one of the 5 most important poets in English literature. English literature की जगत में वो उनको 5वां स्थान था इस पोएट का, इंग्लिश पोएट में। दो ही डाइड एट द यंग एज ऑफ 25, जबकि 25 ईयर्स के अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। ही परहैप्स हैड द मोस्ट रिमार्केबल कैरियर ऑफ एन इंग्लिश पोएट। इसके बावजूद भी उनको इंग्लिश पोएट में उनका स्थान बहुत ही एक अजीब अद्वितीय है। हिज लॉन्ग पोएम्स एंडीमायन एंड हाइपेरियन टेल स्टोरीज फ्रॉम एंशियंट ग्रीक मिथोलॉजी। उनकी जो सबसे लंबी पोएम है वह ग्रीक की पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, एंडीमायन एंड हाइपेरियन। Many of his shorter poems are among the best known in English literature, including the ballad La Bella Dame Sans Mera, I Stood Tiptoe Upon a Little Hill, Sleep and Poetry, his sonnets and odes. These are the famous poems in the English poet. But today I have reading about the things of beautiful. See here the word meaning. Keats was an active letter writing throughout his life. पूरे जिंदगी में वे लेटर राइटिंग का भी कार्य करते रहे। लाइक मैनी पीपुल ऑफ हिज टाइम, जैसे कि अपने ज़माने के लोगों के तरह। हंड्रेड्स ऑफ हिज लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैव सर्वाइव। आज अनेक लेटर अपन उसके रिलेटिव और दोस्तों के पास पड़े हैं। एंड किट्स इज ऑफ्टन कॉल्ड वन ऑफ द ग्रेट लेटर राइटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में उनको ग्रेट लेटर राइटर की संज्ञा दी गई है। सी हियर द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोएम।
नथिंगनेस एन एब्सेंस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की अभाव। बोअर ए प्लीजेंट एंड सैडी प्लेस अंडर ट्री और क्लाइंबिंग प्लांट्स, क्लाइंबिंग प्लांट्स रेंगने वाला पौधा या वैसा चीज जो छायादार वृक्ष के नीचे हो। प्लीजेंट आराम, छायादार वृक्ष के नीचे जो आराम मिलता है उसको बोअर कहते हैं। मोरो कमिंग डे, रीथिंग वीविंग टुगेदर, रीथिंग मीन्स गुथना, एक दूसरे को गुथना। डिस्पोंडेंस ए स्टेट ऑफ बीइंग डिसर्टेड, होपलेस, कठोर बन जाना या निराशा हो जाना। हृदय टूट जाना या निराशा हो जाना, उसको डिस्पोंडेंस कहते हैं। दर्द, स्कार्सिटी और लैक ऑफ समथिंग, अभाव, दर्द मीन्स अभाव। पाल ए डार्क क्लाउड ऑफ ग्लूम एंड सैडनेस, जिस तरह से डार्क क्लाउड को अंधेरा बादल होता है, काली बादल होती है, उसी तरह से मनुष्य की भी दशा दुखी होती है, उदासपूर होती है। स्प्राउटिंग टू डेवलप सडनली इन लार्ज नंबर, बहुत अधिक संख्या में अचानक जम जाना, उग जाना। सैड्यून ए सेड विच इज हेल्पफुल टू समवन, वह छाया जो किसी आदमी को मदद करता हो। रेल्स ए स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर, बहता हुआ नदी का पानी या झरना का पानी। ग्रैंडर द इम्प्रेसिव ब्रेवरी, बहादुरपूर्ण कार्य जिससे लोग प्रभावित हो, यानी जैसे मार्टियर शहीद लोग करता है, जान गंवा देता है, उसी को इम्प्रेसिव, वह दुश्मन से लड़ते हुए अगर जान गंवा दिया तो इम्प्रेसिव ब्रेवरी कहा जाता है। धूम, धूम मीन्स लास्ट डेज ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी जिस दिन आदमी की मृत्यु होती है उसको तुम्स कहा जाता है। हेवंस ड्रिंक द डोर ऑफ गॉड्स होम, भगवान का घर, देवता का घर को हम कहते हैं हेवंस ड्रिंक, द्वार। Choose the correct option. First, according to the poet, the thing of beauty is temporary, eternal, short-lived. Thing of beauty is eternal. A thing of beauty is like a bower that provide us shade. How does a flower band of flowers affect us? It provides us with a beautiful fragrance. It increases our beauty. It helps us stay on the earth. It increases our beauty. How is the earth without thing of beauty? Gloomy. The thing of beauty are like gods. Things of beauty are like God's gift. True, false. A thing of beauty lives forever. True. Bower offers a peaceful resting place. True. Beauty of natural objects takes away the despair from our sad heart. Takes away the despair from outside. True. The poet sees no beauty in the death of martyr or legend. False. The mighty dead are forgotten with the lapse of time. False. Answer the question. What is unique about beautiful things?
ब्यूटीफुल थिंग्स में कोई विचित्र बातें क्या है, कौन सी अजनबी बातें हैं? हाउ कैन ए थिंग ऑफ ब्यूटी अफेक्ट ह्यूमन बींग्स? मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है कोई चीज़ की सुंदरता? हाउ डज द थिंग ऑफ ब्यूटी कीप ए ओवर क्वाइट फॉर अस? किस तरह से किसी भी चीज़ की सुंदरता हम लोग के लिए बिल्कुल जैसे पेड़ के नीचे रखता है। कैसे हम लोग को सुंदरता अपने नीचे रखता है? हु आर माइटी डेट? वो कौन सा वह शक्तिशाली मृत्यु है, कौन सा अच्छा मृत्यु कहा जाता है? व्हाट बिकम्स ऑफ ऑल लवली टेल्स वी हैव हर्ड और रीड? व्हाट बिकम्स ऑफ ऑल लवली टेल्स? जितने जो सुंदर स्टोरी हैं वे वी हैव हर्ड जो हम लोग सुने हैं या कहे हैं, वह क्या होता है? So this is I am going to stop of this poem. This poem is finished.